اے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا، ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسے ابتدا میں تھا، اب بھی ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، آمین۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا قادر مطلق باپ، ہمارے زندہ ازلی اور ابدی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس مقدس دن کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں دیا، تاکہ ہم اکٹھے مل کر تیری عبادت کر سکیں۔ خدا ہم اس جگہ کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں جہاں پر ہم اکٹھے ہو کر تیرے بیٹے یسوع کا بدن ہوتے ہوئے ایک گھرانے کی حیثیت سے تیری عبادت کر رہے ہیں۔ خدا ہم اس جگہ کو ہمارے لیے پاک ٹھہرا، مقدس ٹھہرا، ہماری حفاظت کر۔ خدا ہم اپنے آپ کو تیرے تابع کرتے ہیں۔ خدا پاک روح، ہم تیری مدد و تیری رہنمائی مانگتے ہیں۔ خدا پاک روح، تو ہمیں معمور کر، تو مسا کر، ہمارے خیال اور ذہان خداوند کی طرف لگ جائیں۔ خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ہم میں سے ہر ایک کو چھو دے، ہمارے ایمان کو خداوند مضبوط کر۔ جتنے لوگ یہاں پر جمع ہیں، جتنے لوگ ابھی آ رہے ہیں اور جتنے لوگ خداوند آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، خداوند ان سب کے لیے تیری برکت مانگتے ہیں۔ تو اپنے بیٹے یسوع کے نام سے ہم سب کو چھو اور آج کی عبادت کو ہم میں سے ہر ایک کے لیے برکت کا باعث بنا۔ خداوند دعا کرتے ہیں کہ آج جتنے لوگ کسی بیماری، پریشانی، دکھ اور تکلیف کے ساتھ اس عبادت میں شامل ہیں، آج اس عبادت سے برکت، اطمینان، تسلی اور معجزات پائیں۔ خداوند ہمارا تیرے حمد کے گیت گانا ہم میں سے ہر ایک لیے برکت کا باعث ہو۔ اور خداوند کوائر کے لیے دعا کرتے ہیں کہ کوائر کی بھی تو رہنمائی کر۔ خدا پاک روح، تو کوائر کے ہر ایک شخص کو معمور کر اور مسا کر، تاکہ ہم دو سنا میں ہمارے اچھے مددگار ہو سکیں اور ہم دو سنا کے وسیلے سے اور صرف یسوع کے نام کو جلال ملے۔ خداوند آج جہاں بھی تیرے لوگ عبادت کے لیے جمع ہیں، تو ان کی حفاظت کر، انہیں حادثات، بیماریوں سے اور اسی طرح سے پریشانیوں سے محفوظ رکھ، اور شر پسند عناصر اور دہشت گردی سے بھی اپنے لوگوں کو محفوظ رکھ۔ یسوع کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ Now
आए हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस के हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक खुले कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाक़त, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर 31 गाएंगे। ज़बूर नंबर 31 पहला हिस्सा। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा। ज़बूर नंबर 31 पहला हिस्सा। मेरी आस है तेरे उत्ते ऐ यहोवा पाक खुदा।
کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور اس دعا میں بھائی اسلم ہماری رہنمائی کریں گے۔ ہم اس دعا میں خداوند کی شکر گزاری کریں گے کہ خداوند نے ہمیں محفوظ رکھا ہے اور ہم یہاں پر اکٹھے ہو کر عبادت کر سکتے ہیں۔ ہم اس جگہ کے لیے اور ایف سی کالج کے لیے خداوند کی برکت مانگیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم ایف سی کالج میں تمام کام کرنے والے اسٹاف کے لیے، انتظامی افسران اور فیکلٹی کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند انہیں برکت دے اور ان کے وسیلے سے یہ ادارہ ترقی کرے۔ اس کے ساتھ ہی ہم پوری دنیا میں امن و سلامتی کی دعا کریں گے۔ ہم اپنے ملک کے لیے دعا کریں گے۔ ہمارے ملک میں اس وقت جو سیلابی صورتحال ہے اس میں ہم خداوند سے رحم مانگیں گے اور جو لوگ اس کا شکار ہوئے ہیں ان کے لیے بحالی کی دعا کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم پاکستان میں مسیحیوں کے لیے دعا کریں گے، پوری دنیا میں مسیحیوں کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند اپنے لوگوں کو زندہ کلیسیا بنائے، ایمان میں مضبوط اور گواہی دینے والی کلیسیا بنائے۔ اور ہم اپنی کلیسیا کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند ہماری کلیسیا کو برکت دے اور کلیسیا کو بھی ایک زندہ اور گواہی دینے والی کلیسیا بنائے۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور بھائی اسلم اس دعا میں رہنمائی کریں گے۔ سب سر خدا کے حضور جھک جائیں۔ بزرگ آسمانی باپ، تیرے بیٹے یسوع کے نام سے آج صبح تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ تو جو ہمارا خالق، ہمارا مالک ہے، تو نے ایک دفعہ پھر ہمیں زندگی میں ایک اور دن دیا تاکہ ہم تیرے حضور بڑی عاجزی، حلیمی، انکساری، فروتنی کے ساتھ آ سکیں۔ اپنی ساری مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر خداوند ہم تیرے حضور آئے ہیں۔ تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے ہم تیرے حضور اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ جتنے لوگ خداوند اس وقت تیرے حضور تیرے بیٹے یسوع کے نام سے جھکے ہوئے ہیں، خداوند ان سب کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند تو نے ان کو اپنی فرما برداری میں بلایا، اور جتنے رستے میں آ رہے ہیں ان کے لیے تیری سلامتی کو مانگتا ہوں۔ جو ابھی تک نہیں پہنچے خداوند ان کو تیرا پاک روح جلد لائے، اور خداوند تیرا شکر کرتے ہیں خداوند پاک خدا تیرے خادم کے لیے، پاس روبن کمر کے لیے، جس کو تو خداوند اپنے جلال کے لیے، اپنی قدرت کے لیے روح القدس کے وسیلے استعمال کرتا ہے، اس سے کلام کے وسیلے خداوند بات کرتا ہے، اور جب تیرا کلام، جب تیرا بندہ کلیسیا میں بولتا ہے، تیرا پاک روح اس میں سے ہو کر بولتا ہے، کلیسیا برکت پاتی ہے، کلیسیا دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں اور اس خوبصورت ادارے کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں خداوند، اس خوبصورت ماحول کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں خداوند پاک خدا۔ ہم اس ادارے کے لیے تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے ساری کلیسیا مل کر اس کی بحالی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اس کی ترقی کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے خداوند۔ ساری خداوند پاک خدا انتظامیہ کو، فیکلٹی کو، اور خداوند سارے سٹاف کو تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے تیری فرما برداری میں مانگ دیتے۔ خداوند پاک خدا تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں زندہ رکھا ہے، تیری گناہ گو نعمتوں، رحمتوں، بخشوں، برکتوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں خداوند۔ میں تیرے بیٹے یسوع کے نام سے خداوند پاک خدا ایف سی کالج کی کلیسیا کے لیے، جو زندہ کلیسیا ہے خداوند، جو تیری فرما بردار کلیسیا ہے خداوند پاک خدا، تیرے حکموں کو، تیرے آئین کو مانتی ہے خداوند، ہر وقت ایمان میں کھڑی رہتی ہے، تیرا شکر کرتا ہوں یہ اسی طرح تیرے بیٹے یسوع مسیح میں ایمان میں قائم اور دائم رہے اور دن دگنی رات چگنی ترقی کرے خداوند پاک خدا۔ جو لوگ بیمار ہیں تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے ہر طرح کی بیماری سے شفا پائے، اور خداوند دعا کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر مسیحی قوم کو تیرے بیٹے یسوع کے نام سے خداوند پاک خدا مانگ لیتے ہیں،
جہاں جہاں آزار ثانیاں ہیں، مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے بحالی ہے، لوگ شفا پائیں، لوگ ہر طرح کی مشکل سے آزاد ہوں، ہر طرح کی بدحالی تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے خوشحالی میں بدل جائے۔ جہاں جہاں ایماندار آزاد ثانیوں میں ہیں، تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں ان کے لیے بھی ایمان کی مضبوطی اور رہائی چاہتے ہیں۔ خدا پاک خدا، ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں خدا اس سال بہت بارشیں ہوئی، جہاں جہاں بھی سیلاب میں خدا پاک خدا لوگ پریشان ہیں، جن کے گھر سیلاب کی وجہ سے بہہ گئے ہیں، جن کے خدا کھیت سیلاب کی وجہ سے برباد ہو گئے ہیں، خدا پاک خدا جن کے پاس چھت نہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، خدا پاک خدا تو بیابانوں میں من برساتا ہے، تو بیابانوں میں 40 سال اپنے لوگوں کی خدا فکر کرتا ہے۔ ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے ان لوگوں کو تیرے پاس لاتے ہیں، بڑی مدد کر خدا پاک خدا۔ اپنے ملک کی حالت پر خدا تیرے آگے دعا کرتے ہیں، تیرے کلام میں لکھا ہے کہ راست باز کے دعا کرنے سے شہر بچ جائے۔ خدا ہم سب کلیسیا مل کر خدا اپنے ملک پاکستان کی سلامتی، بحالی، بہتری، ترقی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تمام سیاسی لیڈرشپ کو تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے تیری فرما برداری میں دے دیتے ہیں، تمام عدلیہ کو تیرے ہینڈ اوور کرتے ہیں، سارے فیصلے خدا تیری مرضی کے مطابق ہوں۔ خدا حکومتیں تو بناتا اور تو گراتا ہے۔ خدا میرے ملک پر تیرا رحم چاہتے ہیں، میرے ملک پر تیرا ترس۔ خدا پاکستان کی مسیح کلیسیا پاکستان کے لیے باعث برکت بن جائے۔ خدا پاک خدا پاکستان کی کلیسیا خدا پاکستان کے ان دنوں میں کھڑی ہو، اور خدا پاک خدا جس طرح تو بنی اسرائیل کی قوم کو دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا، خدا پاک خدا تو ہمارے ملک پر رحم کر، رحم کر، رحم کر۔ خدا باقی ماندہ اس عبادت کے حصے کو تیرے ہینڈ اوور کرتے ہیں، خاص کر خدا پاک خدا کویت کے لیے خدا تیری برکت چاہتے ہیں، ان کے گلوں کو چھو، ان کی آوازوں کو چھو۔ جب یہ پرستش کرتی ہے تو پرستش کے وسیلے سے بندھن ٹوٹ جائیں، جوئیں ٹوٹ جائیں، بیمار اچھے ہوں، اور خدا پاک خدا کلیسیا پرستش کے وسیلے برکت پائے۔ ایلڈر صاحبان کو خدا جو نعمت تو نے دی ہے، تمام خدا چرچ انتظامیہ کو تیرے ہینڈ اوور کرتے ہیں، سب کے ساتھ ہوں، بڑی برکت دے، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ خداوند کی تعریف میں آگے بڑھتے ہوئے ہم زبور 139 گائیں گے، زبور نمبر 139، زبور نمبر 139۔ خدایا تیری روح تو میں بھلا ناسکے کے در جاواں۔
आइए हम एक बार फिर दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हम ये शिफाया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि हम खुदावंद की हजूरी में हैं और खुदावंद की हजूरी में जब ईमानदार इकट्ठे मिलकर दुआ करते हैं, यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं तो मोजज़ात होते हैं। आए हम सभी अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए मुत्तफिक होकर एक दिल होकर दुआ करें। खुदाए कादिर मुतलक बाप, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरे बेटे यीशु के लिए शुक्र करते हैं जिसके नाम में कुदरत है, जो जिंदा है और जिसने मौत पर फतह पाई है, जो जिंदगी देने वाला खुदा है। तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे के लिए जिसने ये कहा कि जिंदगी में हूँ, जिसमें जिंदगी है खुदावंद, उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि हमारा ईमान, भरोसा और तवक्कुल उसी पर है और उसी के वसीले से खुदावंद हम तेरे पास आए हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, तेरी हजूरी में हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि तू हम में से हर एक को छू दे, ताकि तेरे छूने से हमारी हर एक जिस्मानी बीमारी, जिस्मानी दर्द, तकलीफ यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद हम अपनी कुव्वत अपने इख्तियार से नहीं, यीशु के नाम से हुक्म देते हैं क्योंकि यीशु के नाम में कुदरत है। यीशु का नाम सब नामों से आला है, इसलिए यीशु के नाम से हर एक तकलीफ और बीमारी को हुक्म देते हैं कि हमारे जिस्म से दूर हो। खुदावंद हमें छू, शिफा दे, हमारी जिंदगी में बड़ा मौजज़ा कर, ताकि हम तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरी गवाही दें, तेरी कुदरत का तजुर्बा करें।
खुदावन तू हम इस हर एक के साथ हो। खास तौर पर खुदावन हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उन्होंने दरखास्त की है कि कलीसिया मिलकर उनके लिए दुआ करे। हम सब मुत्तफिक होते हैं और मिलकर खुदावन तेरी हजूरी में ले आते हैं। खास तौर पर खुदावन हम दुआ करते हैं बहन परवीन कौसर के लिए, इसी तरह खुदावन हम दुआ करते हैं बहन नासरा जावेद के लिए, इसी तरह से खुदावन हम दुआ करते हैं अदीबा के लिए, इसी तरह से खुदावन यूरेब के लिए दुआ करते हैं, अरीबा के लिए, बहन शहनाज के लिए, भाई सफदर नाज के लिए और बहन नाज के लिए दुआ करते हैं। इसी तरह से खुदावन हम दुआ करते हैं यूनुस साहब और उनके ख़ानदान के लिए, मिसेस नसीम सलीम के लिए, मिसेस जीनत के लिए, मिसेस नज़ीर ज़ियाई के लिए और मिसेस सरवर के लिए दुआ करते हैं। इसी तरह से खुदावन हम बहन फौजिया के लिए, बहन अनीला के लिए और बेटी जेरुशा के लिए, कोमल के लिए दुआ करते हैं। और खुदावन हम दुआ करते हैं भाई शहजाद के लिए, भाई परवेज यूसुफ के लिए, भाई नदीम जॉर्ज के लिए, भाई आसफ रशीद के लिए और भाई अगस्तीन के लिए दुआ करते हैं। खुदावन इन सब को छू और इन सब की ज़िंदगी में बड़ा मौजज़ा हो। और भी हमारी कलीसिया में जितने लोग किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो उन सबको जानता है, तो उनकी हालत से वाकिफ है। खुदावंद एक को छू और शिफा दे। हर एक बीमारी कमजोरी यीशु के नाम से जाती रहे। रूहानी बीमारियां भी यीशु के नाम से हमारी कलीसिया में से जाती रहे। और खुदावंद हमारी कलीसिया में जो बे औलाद जोड़े हैं यीशु के नाम से उनकी बरकत मांगते हैं। खुदावंद उन्हें छू दे ताकि तेरे छूने से उन्हें औलाद की बरकत मिल जाए, तेरी मेरास उन्हें मिले, तेरी तरफ से कुदरत का तजुर्बा उन्हें हो और तेरी कुदरत उन पर ज़ाहिर हो। तू छू और बरकत दे। खुदावंद हमें वबाई अमराज से, कोरोना से, डायरिया से और जितनी वबाई अमराज हैं, डेंगू से खुदावंद हमें महफूज रख और हमारी हिफाजत कर। खुदावंद हम सब इकट्ठे मिलकर इस वक्त सैलाब ज़दगान के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद तू रहम कर, हमारे मुल्क पर रहम कर खुदावंद, और सैलाब यीशु के नाम से खुदावंद उसकी तबाहकारियाँ जो हैं वो रुक जाएं। और खुदावंद दुआ करते हैं जो लोग इसका शिकार हो चुके हैं उनको यीशु के नाम से बहाली मिले, वो साए आएँ और खुदावंद तेरे फजल के वसीले से लोग बहाल हो जाएं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद कि हम यहाँ पर महफूज हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे अजला हैं, बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोग सैलाब की वजह से जख्मी हैं, बेसरो समानी की हालत में हैं, बीमार हैं, जिनके अजीज खो गए हैं। खुदावंद उन सबको तेरी हजूरी में याद करते हैं। खुदावंद ने तसल्ली इत्मीनान बख्श दे और उन्हें बहाली बख्श दे। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। इस वक्त हम क्वायर से गीत सुनेंगे और मैं दरखास्त है कि जब क्वायर गीत गाए तो ज़रूर उनके साथ गाया करें ताकि वो गीत हम सब सीख सकें और हम सब मिलकर उनको गा सकें। आज का जो हम गीत गा रहे हैं ये गीत की किताब में से ही है, गीत नंबर 231। गीत नंबर 231 आप हमारे साथ निकाल सकते हैं और हमारे साथ इस प्रस्तुति में शामिल हो सकते हैं। शुक्रिया। Thank
चंद एक ज़रूरी एलानात हैं। आइंदा अतवार 4 सितंबर 2022 को, जो कि महीने का पहला अतवार भी है, उसमें हमारी अशायर बानी की इबादत होगी। क्योंकि मैं गुज़श्ता के इतवारों से आपके सामने ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमने शायर बानी के शेड्यूल को जो हमारा था उसको तब्दील किया है, और जैसे महीने के आखिरी अतवार और सिर्फ दूसरे अतवार इबादत शायर बानी की रस्म होती थी, अब हमने इसको अल्टरनेट संडेज पे मुंतकिल किया है। यानी एक अतवार छोड़कर हम शायर बानी की इबादत करेंगे। गुज़श्ता अतवार हम शायर बानी की इबादत पे जमा हुए थे, और अब आने वाले अतवार फिर से हम शायर बानी की इबादत करेंगे। ये हमारे लिए समझने में और याद रखने में आसानी रहेगी कि जिस अतवार शायर बानी नहीं हुई उससे अगले अतवार शायर बानी हुआ करेगी। इसलिए आइंदा अतवार अपने आप को खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए तैयार करके आए, और जो लोग आज नहीं आए उन्हें भी ज़रूर लगा करें ताकि वो भी खुदावंद की मेज़ पर आ सकें। इसके साथ ही यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल यानी UCH हॉस्पिटल में मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स का इस साल फिर दोबारा से आगाज़ हो रहा है। नई क्लासेस का आगाज़ होने वाला है। उसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ चर्चेज़ में अनाउंसमेंट के लिए एक लेटर भेजा, और ये इस मकसद के लिए भेजा गया है ताकि कलीसियाओं में से लोग जो हैं वो अपने बच्चों को इन ट्रेनिंग्स के लिए भेज सकें। ये मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स हैं, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, इसी तरह से डिस्पेंसर की ट्रेनिंग है, एक्सरे टेक्नोलॉजी है, और ऑपरेशन थिएटर के जो टेक्नोलॉजी है या ये ट्रेनिंग है शायद OT की, ये वो है। ये 4 ट्रेनिंग्स हैं, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, डिस्पेंसर, एक्सरे और ऑपरेशन थिएटर की ट्रेनिंग है। इसके लिए ये जो UCH का जो ये अदारा है, ये पंजाब मेडिकल फैकल्टी से अप्रूव्ड है, और उनके साथ मिलकर इसके जो इम्तहानात हैं गवर्नमेंट के तहत होते हैं, और जो डिग्री है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। इसलिए आप लोग बड़ी आज़ादी के साथ और दिलेरी के साथ अपने बच्चों को वहाँ पर ट्रेनिंग्स के लिए भेज सकते हैं। और इसकी फॉर्म हासिल करने की आखिरी तारीख 1 अक्टूबर है। ये कल से फॉर्म्स मिलने का आगाज़ हो रहा है, और 1 अक्टूबर तक यानी 1 अक्टूबर तक ये फॉर्म्स आपको मिल सकते हैं। और उसके बाद एंट्री टेस्ट है 8 अक्टूबर को, जिसके लिए फिर जो स्टूडेंट्स जो अप्लाई करेंगे उनका एंट्री टेस्ट भी होगा। तो ज़रूर जो अपने बच्चों को मेडिकल की मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स दिलाना चाहते हैं वो ज़रूर UCH से इन फॉर्म्स को हासिल करें। ख़ास तौर पर एक और अहम बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में सैलाब की सूरत हाल है, और बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। आपने न्यूज़ में देखा होगा, और न्यूज़ में जो सूरत हाल है वो देखकर तो बाज़ औक़ात न्यूज़ देखने को दिल नहीं चाहता, इतनी ख़तरनाक सूरत हाल। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम यहाँ पर महफूज हैं, लेकिन बहुत से लोग, एक अंदाज़ा है कि 30 लाख लोग तकरीबन बेघर हो चुके हैं या इस तकलीफ़ में गुजरे, सैलाब से मुतासर हुए। और लोग हम न्यूज़ पर भी देखते हैं, और जो जिस तरह से सैलाब आया है, लोगों के घर गिरे हैं, लोग बेघर हुए हैं, लोगों का माल और मवेशी जो है वो ज़ाया हुआ है, और कारोबार ख़त्म हुए हैं, बहुत सी जानों का नुकसान हुआ है। इन हालात में आप लोगों के लिए ये दरख्वास्त है कि ज़रूर उन लोगों की मदद के लिए अपनी बरकतों में से और शुक्रगुजारी के तौर पर ज़रूर हदिया जात दें। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम महफूज हैं, लेकिन वो लोग जो दुख की हालत में हैं उनकी मदद के लिए हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए ज़रूर आप इसमें अपना दिल खोल कर अतिया दें, मदद करें। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं या हमें भी दे सकते हैं। हम भी बतौर चर्च इसके लिए कोशिश हैं कि हम फंड रेजिंग करें, और इसके बाद हम भी सैलाब ज़दगान की मदद करें। आप अपने फंड्स जो हैं या जो भी आप सोचते हैं कि आप उन लोगों की मदद करना चाहते हैं वो हमें दे सकते हैं, ताकि हम इस काम को कर सकें, इस जिम्मेदारी को पूरा कर सकें। क्योंकि बतौर ईमानदार मसीही भी हमारी जिम्मेदारी है कि जो लोग हमारे इर्द गिर्द मुसीबत में हों हम उनके मददगार हों। इसलिए ज़रूर इस बात पर सोचें, अपने आप को तैयार करें कि वो लोग जिस वक्त दुख में हैं उनकी हम किस तरह से मदद कर सकते हैं।
آئے ہم خداوند کے کلام کو سننے سے پہلے خداوند کی تعریف میں گیت گائیں گے. گیت نمبر ہے 379 379 یسوع چھو. اور اس کو ہم کھڑے ہو کر گائیں گے اور اس گیت کے ختم ہونے کے بعد ہم کھڑے رہیں گے اور خداوند کے کلام کی تلاوت کو بھی سنیں گے. مقدس کی تلاوت کو سنیں گے. مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 25ویں آیت سے لے کر 37ویں آیت تک. The Gospel of Luke chapter 10 verses 25 to 37. مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 25ویں آیت سے لے کر 37ویں آیت تک. کلام مقدس کی تلاوت میں ہماری رہنمائی مسز شنیلا گوگیل کریں گے. مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. ہمارے لیے آج کا کلام مقدس لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 26 ورس سے 37 ورس 25 سے 37ویں آیت تک. خداوند کا کلام یوں ہے. اور دیکھو ایک عالم شرع اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا کہ اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں. اس نے اس سے کہا توریت میں کیا لکھا ہے تو کس طرح پڑھتا ہے. اس نے جواب میں کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت
और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो जिएगा। मगर उसने अपने तय रासबाज ठहराने की गर्ज से यीशु से पूछा, फिर मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में घिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और अधमुहा छोड़कर चले गए। इत्तेफाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेकिन एक सामरी सफ़र करते करते वहाँ आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया। उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। दूसरे दिन 2 दिनार निकाल कर भटियारे को दिए और कहा, इसकी खबरगिरी करना और जो कुछ इससे ज़्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा करूँगा। इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में घिर गया था, तेरी दानिश में कौन पड़ोसी ठहरा? उसने कहा, वो जिसने उस पर रहम किया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। खुदावन के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाए सबके विवाह से। आमीन। तशरीफ रखें। आइए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे नाम को मुबारक कहते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया है कि हम इकट्ठे हो सकें और तेरी इबादत कर सकें। जितना वक्त हमने तेरी हमद सुना में गुजारा है, हमने शुक्रगुजारी की है और तुझसे बरकत पाई है। इस वक्त खुदावंद जब हम तेरे कलाम को सुनने वाले हैं, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद के तू हमें से हर एक को छू और बरकत दे। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आज का कलाम हमारी जिंदगी में तब्दीली का बायस हो। तू छू खुदावंद, अपने आप को खुदावंद तेरे ताबे करता हूँ। खुदा पाक रूह तू बोल, तेरी रहनुमाई मेरे साथ हो ताकि आज हम इस कलाम से बरकत पाएं। यीशु के नाम में आमीन। हम जिंदा कलीसिया की खूबियों को देख रहे हैं और आज फिर एक और खूबी को हम देखेंगे और इस खूबी को देखकर हम जांचने की कोशिश करेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं, where we stand as a living church। जब हम ये कहते हैं कि हम कलीसिया हैं, हम यीशु पर ईमान रखते हैं, हम यीशु के लोग हैं, एहसास दिलाता है कि क्या हम उस मेयार पर पूरा उतरते हैं जो हम दावा करते हैं कि हम यीशु पर ईमान रखने वाले और जिंदा कलीसिया हैं। तो फिर हमें अपने आप को जांचते रहने की जरूरत है। रसूल ये मेयार हमारी जिंदगी में मौजूद है ताकि हम एक जिंदा कलीसिया कहला सकें। आज जिस खूबी को हम देखेंगे वो है मदद करने वाली कलीसिया। यानी जिंदा कलीसिया एक मदद करने वाली कलीसिया होती है। लिविंग चर्च मस्ट बी अ हेल्पिंग चर्च, हेल्पफुल चर्च, कि वो दूसरों का मददगार हो, दूसरों की मदद करने वाला चर्च कलीसिया। अभी मैं आपसे दरखास्त भी कर रहा था कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से अजला हैं, बहुत से लोग हैं, तकरीबन 30 लाख लोग जो कि इस सैलाब से मुतासर हुए हैं। लाखों की तादाद में लोग बेघर हुए हैं, घर गिर गए, नुकसान पहुंचे हैं। लाखों की तादाद में लाइफ स्टॉक जो है, जो माल और मवेशी है लोगों का, वो मर गया है। 1000 से ज़्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। तो इन सारे हालात में कलीसिया का क्या कर रद्द-ए-अमल है, कलीसिया क्या कर रही है। और जिंदा कलीसिया आज हम जिस खूबी को देखेंगे वो एक रिस्पॉन्ड करने वाली कलीसिया है मुसीबत में, लोगों की तकलीफ में।
जिंदा कलीसिया मुसीबत में फंसे हुए लोगों की मदद करती है। और आज जो तमसील यीशु ने दी उसमें से हम यही सीखने वाले हैं। इस तमसील का आगाज एक मुख्तलिफ सवाल से है, लेकिन उसमें जवाब में खुदावंद यीशु मसीह ने एक ईमानदार की खूबी को पेश किया कि वो कैसा होना चाहिए, जो हमेशा की जिंदगी का वारिस होने का दावा करता है, जो ये कहता है कि मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस हूं, मैं खुदावंद का बेटा या बेटी हूं, मैं कलीसिया का रुकन हूं, क्योंकि कलीसिया के साथ खुदा ने हमेशा की जिंदगी का वादा किया है। जो हमेशा की जिंदगी का वारिस होने का क्लेम करता है, उसकी जिंदगी में दूसरों की मदद करने की खूबी होना जरूरी है। और यहां पर एक आलम शरा की बात का जिक्र किया गया है कि आलम शरा उठा और उसने यीशु से सवाल किया कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। यीशु ने जब उससे सवाल किया कि तौरात में क्या लिखा है, और उसने फौरन उसका जवाब भी दिया। वो वाकिफ था, आलम शरा है, शरा का आलम, शरीयत का आलम, स्कॉलर है, शरीयत को समझने वाला, तौरात को समझने वाला स्कॉलर है, उसकी तशरीह करने वाला स्कॉलर है। लेकिन एक स्कॉलर जो तशरीह करता है तौरात की, उसके बाद उसका क्वेश्चन है मेरा पड़ोसी कौन है। यानी जिसको तशरीह करते हुए बताना चाहिए कि पड़ोसी कौन है, वो यीशु से सवाल करता है मेरा पड़ोसी कौन है। शरीयत को जानता है, खुदा की मर्जी को जानता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो उसको अपनी जिंदगी में नहीं ले सका। जिंदा कलीसिया खुदा के कलाम को अमली तौर पर अपनी जिंदगी में लेती है। नॉलेज इज गुड बट नॉलेज इज नॉट इनफ। जब बाइबल का नॉलेज हम बात करते हैं ना कि बाइबल का बड़ा इल्म है जी, हमें बड़ी बहस, बड़े सवाल लोग करते हैं, खास तौर पर जनाजे के मौके पर जब बैठे होते हैं दरी पर सारे लोग, उस वक्त लोग बाइबल में से बड़े बड़े सवाल निकालते हैं और ऐसे ऐसे सवाल निकालते हैं कि लोगों को लाजवाब कर देते हैं। खास तौर पर जब पादरी साहब बैठे हों साथ, तो फिर लोग बड़े सवाल करते हैं और सवाल ऐसा करेंगे कि पादरी साहब ही सोचेंगे सवाल क्यों है, तो फिर दूसरी देखिए हम फंसा रहे ना पादरी साहब। फिर दूसरी तरफ मैंने तजुर्बा किया लोगों का कि जनाजे में सबसे ज्यादा सवाल किए जाते हैं और नॉलेज चेक किया जाता है और अपना नॉलेज बताया जाता है। बाइबल का नॉलेज जो है वो होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बाइबल के नॉलेज को अमली तौर पर अपनी जिंदगी में लेना, यह है कि ईमानदार की निशानी है। एक ईमानदार की जिंदगी में जो उसका नॉलेज है बाइबल के बारे में, खुदा के बारे में, वो नजर आए। और यहां पर आलम शरा कहता है, उससे सवाल किया तौरात में क्या लिखा है, उसने दो हवालों को कोट किया इस्तिस्ना की किताब के 6 बाब में से, जो उनके लिए बड़ा ही एक कन्फेशनल आयात थी, उनका फेथ था ये, सुन है इस्राएल, खुदावंद तेरा खुदा एक ही खुदा है और तू उससे अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत रख, से मोहब्बत रख। फिर उसने अहबार की किताब के 19वें बाब में से आयत को, पड़ोसी से अपनी मानव मोहब्बत रख, उसको कोट किया। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील के 22वें बाब में इसी को सारी तौरात और अंबिया के सहायक का खुलासा के तौर पर बयान किया कि ये इसी पर सारी तौरात, अंबिया के सहायक का दारोमदार है। यानी ये सेंट्रल थीम है खुदा की मर्जी और उसके हुक्म का। और उसने भी बड़ी खूबसूरती के साथ खुदावंद यीशु मसीह के सवाल का जवाब दिया। लेकिन जब यीशु ने कहा कि तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा, तो उसने अपने इतनी रास्तबाज ठहराने की गर्ज से यीशु से पूछा फिर मेरा पड़ोसी कौन है। क्योंकि यहूदी लोगों के लिए पड़ोसी सिर्फ यहूदी था और वो लोग ये सोचते थे कि हमारे लिए सिर्फ यहूदी शख्स की मदद करना ही जरूरी है, कि जो हमारे नस्ल से हैं, हमारे खानदान से है, हमारे कबीले से है, सिर्फ वही शख्स हमारा पड़ोसी है और हम उसकी मदद करेंगे।
लेकिन यीशु ने फिर उसके बाद उसके सवाल के जवाब में तमसील एक बताई। नेक सामरी की तमसील हम जानते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, संडे स्कूल से इस नेक सामरी की तमसील को जानते हैं। ये स्टोरी हमारे दिलों में, हमारे जहनों में नक्श है, लेकिन अमली तौर पर इस पैराबल का, इस तमसील का, इस स्टोरी का इजहार हमारी जिंदगी में किस हद तक है, ये आज एक क्वेश्चन है, ये एक चैलेंज है, ये एक सवाल है कि हम बचपन से इस कहानी को सुनते आए हैं और किसी से भी पूछें कि नेक सामरी की स्टोरी क्या है तो सभी लोग बता सकते हैं। 99% लोग इस स्टोरी से वाकिफ हैं, इसको जानते हैं, इसको याद रखते हैं, लेकिन अमली तौर पर कितने फीसद लोग इस स्टोरी की हकीकत से आगाह हैं? इसका मतलब क्या है, इसमें यीशु क्या सिखाना चाह रहा है? और इसमें 3 लोगों का जिक्र किया गया, पहले एक काहिन का, और फिर एक लावी का, और फिर उसके बाद नेक सामरी का। इन तीनों का रवैया एक शख्स के लिए जिसको डाकुओं ने घेर लिया, उसे मारा और अधमुआ छोड़कर चले गए, उसके कपड़े भी उतार लिए, यानी इसके पास कुछ नहीं रहा। एक शख्स जो रास्ते में था, उसे डाकुओं में गिर गया, उसके कपड़े भी उतार लिए गए, उसको मारा भी गया और अधमुआ छोड़कर चले गए। हेल्पलेस शख्स, बेयारो मददगार, बेसरो समानी की हालत में एक शख्स है। और पहले 2 शख्स दोनों जो हैं वो शरीयत को जानने वाले और शरीयत पर अमल करने वाले लोग थे, एक काहिन और एक लावी। और एक स्कॉलर कहते हैं कि यरू से यरूशलेम का सफर अक्सर मजहबी लोग किया करते थे, क्योंकि यरू में मजहबी लोगों की रहायश गाहें थी। काहिन और लावी क्योंकि ये हैकल में खिदमत करते थे, काहिन खिदमत के लिए आते थे, जो लावी के घराने के लोग थे वो भी हैकल की खिदमत के लिए आते थे। इसलिए ये एक सफर था जो अक्सर, ये रास्ता जो है अक्सर मजहबी लोगों के इस्तेमाल में रहता था, और मजहबी लोग अपनी मजहबी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए यहां से गुजरते थे। लेकिन इन दोनों ने अपनी मजहबी जिम्मेदारी को पूरा करना जरूरी समझा है, लेकिन इस जरूरतमंद बेसरो समानी में शख्स की मदद करना जरूरी नहीं समझा। ये दोनों शख्स उसे देखकर कतरा कर चले गए। पहले काहिन आया, उसी राह से जा रहा था, कतरा कर चला गया। लावी आया, उसी जगह से गुजरा और वो भी इसे देखकर कतरा कर चला गया। इनके लिए मजहबी जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन उस शख्स की मदद करना अहम नहीं। हालांकि खुदा का कैरेक्टर क्या है, खुदा के लोगों का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? जैसा खुदा का है, क्योंकि खुदा के लोग खुदा को पेश करने वाले लोग हैं, खुदा के लोग यीशु को पेश करने वाले लोग हैं। और हमने गुज़श्ता भी क्रिश्चियन वैल्यूज के हवाले से जब गुज़श्ता अतवार आप सीख रहे थे, तो उसमें भी हम यही सीख रहे थे कि ईमानदार जब अपनी जिंदगी से मसीही इक़दार को जाहिर करता है तो वो खुदा को पेश करता है, खुदा के नाम को जलाल देता है, और खुदा का कैरेक्टर लोगों की मदद करना, गरीब मुसीबत में फंसे हुए शख्स की मदद करना है। और 2 आयात में आपके सामने खुदा के कैरेक्टर के हवाले से रखना चाहता हूं। ज़बूर 147 और उसकी 3री और 6ठी आयत। 3री आयत में लिखा है, वो शिकस्ता दिलों को शिफा देता है और उनके जख्म बांधता है। फिर 6ठी आयत में लिखा है, खुदा हलीमों को संभालता है। 9वीं आयत में लिखा है, वो हैवानात को खुराक देता है और कव्वे के बच्चे को जो काई काई करते हैं। खुदा का कैरेक्टर क्या है कि खुदा शिफा देता है, खुदा जख्मियों के जख्म को बांधता है, खुदा खुराक मुहैया करता है। इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह के कैरेक्टर को या उसके आने के मकसद को मुकद्दस लूका की अंजील में हम देखते हैं। मुकद्दस लूका की मार्फ पर लिखी गई अंजील और उसका 4था बाब और उसकी हम 17वीं आयत से लेकर 21वीं आयत में एक वाक़े को देखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह एक इबादत खाने में आए और पढ़ने को खड़े हुए।
یعنی حوالہ پڑھنے کو، تلاوت کرنے کو، جس طرح ہم بھی یہاں پر تلاوت کرتے ہیں، اسی طرح سے عبادت خانوں میں یہودی لوگ تلاوت کیا کرتے تھے صحائف کی. تو خداوند یسوع مسیح وہاں پر کھڑے ہوئے تلاوت کے لیے اور انہیں صحیفہ دیا گیا. صحیفہ انہیں یسایہ کی کتاب کے 61ویں باب میں سے دیا گیا. یسایہ کی کتاب کا 61واں باب انہی آیات کو بیان کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے وہ حوالہ نکالا اور 18ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے پڑھنا شروع کیا، خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھ کو غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا. اس نے مجھے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خوشخبری دوں، بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں. اس حوالے میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے آنے کے مقصد کو بیان کیا. اور مقصد کیا تھا؟ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے، مسا کیا ہے. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں. یسوع کہنے کا مقصد غریبوں کو خوشخبری دینا ہے، غریبوں کو مصیبت میں سے نکالنا اور ان کی مدد کرنا. یہ خدا کا کردار ہے اور خدا کا اپنے بیٹے یسوع کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے. لیکن ایماندار جو اس دنیا میں ہیں وہ صرف مذہبی ذمہ داری کو پورا کرنا اہم سمجھتے ہیں، عبادت کرنا، ہدیہ جات دینا اور اپنے آپ کو دعا میں بہت مضبوط بنانا، لیکن عملی طور پر ایمان کو ظاہر نہ کرنا. یہ حقیقی زندہ کلیسیا کی نشانی نہیں ہے، بلکہ زندہ کلیسیا یعقوب کے خط کے 2 باب میں نظر آتی ہے کہ زندہ کلیسیا جو ایمان رکھتی ہے اس کو عمل سے ظاہر کرتی ہے. یعقوب کا خط اور اس کا 2 باب اور اس کی 14ویں آیت سے شروع ہوتا ہے، اے میرے بھائیوں، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہوں تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاگ، گرم اور سیر رہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہوں وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ؟ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ عمال نہ ہو تو اپنی ذات میں مردہ ہے. پھر آگے 19ویں آیت میں یعقوب کہتے ہیں، تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے. شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھرتھراتے ہیں. مگر اے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر عمال کے بیکار ہیں؟ جیسا میں نے پہلے کیا کہ نالج اچھی چیز ہے، بائبل کا کلام کا علم ہونا بڑی اچھی چیز ہے، سوال نکالنا بڑی اچھی بات ہے. ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں سے سوال نکالتے ہیں، ریز کرتے ہیں کوسچنز. لیکن یہاں پر کہتے ہیں کہ شیطان بھی ایمان رکھتا ہے اور تھرتھراتے ہیں. جب خداوند یسوع مسیح کی آزمائش شیطان نے کی تو اس نے سوال کیے اور خدا کے کلام کی باتیں بھی کی. خداوند یسوع مسیح نے ایمان سے، خدا کے کلام سے ہی جواب دیا. یہاں پر لکھا کہ شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں اور تھرتھراتے ہیں. صرف ایمان ہے اگر تو وہ تو شیاطین بھی رکھتے ہیں. اگر نالج ہے تو غیر مسیحی بھی رکھتے ہیں. غیر مسیحی بعض اوقات ہم سے زیادہ بائبل کا نالج رکھتے ہیں. لیکن اگر ہمارے ایمان کی ڈیمونسٹریشن نہیں ہے، اظہار نہیں ہے، تو وہ اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ مردہ ایمان ہے. زندہ کلیسیا کا زندہ ایمان وہ ہے جو اس کے کاموں سے ظاہر ہو. اور یہاں پر لاوی اور کاہن جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ ایمان کو پریکٹس کریں، ان لوگوں نے ایمان کو پریکٹس نہیں کیا. ایک شخص جو کہ سامری ہے اور جس سے یہودی نفرت کرتے ہیں، وہ آیا، اس نے اس کو دیکھ کر اس پر ترس کھایا، اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور مے لگا کر باندھا، اپنے جانور پر سوار کر کے صحرائی میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی. دوسرے دن 2 دینار نکال کر بٹیارے کو دیا، کہا اس کی خبر گیری کرنا، جو کچھ اس میں سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کروں گا. ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اس شخص کو نہ دیکھتا تو اسی دن اپنی منزل پر پہنچتا، لیکن رکا، اس کے زخم باندھے، اس پر مرہم لگایا
اور اس کو سوار کر کے لے گیا اور سرائے میں لے کر جا کر اس کی خبر گیری کی، ٹھہر گیا اس کے ساتھ. He sacrificed his time, his money. اس نے اپنا وقت دیا، اس نے محنت کی، اس نے دکھ خود اٹھایا، اس نے روپیہ خرچ کیا، لیکن وہ شخص یہودیوں کے نزدیک قابل نفرت تھا. یہودی سامریوں سے نفرت کرتے تھے، یہودی سامریوں کے ملک میں جانا نہیں چاہتے تھے، یہودی سامریوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے، یہودی سامریوں کا نام بھی اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتے تھے. لیکن اس سامری نے اس سے محبت کی. کاہن اور لاوی جن کو بڑا احترام دیا جاتا تھا، انہوں نے اس شخص سے نفرت کی، لیکن جس شخص سے یہودی نفرت کرتے تھے اسی شخص نے اس کی خدمت کی. اور پھر آخر میں یسوع نے پوچھا کہ ان تینوں میں سے پڑوسی کون ہے؟ اس نے کہا جس نے اس پر رحم کیا. تو یسوع نے کہا تو بھی ایسا ہی کر. اس کا مطلب کیا ہے کہ تو بھی اپنے دشمنوں سے، اپنے مخالفوں سے، جن سے تو نفرت کرتا ہے، جو تیرے نہیں ہیں، ان کی مدد کر. اور خداوند یسوع مسیح نے مقدس متی کی مارک پر لکھی گئی انجیل کے 5ویں باب میں اسی مثال کو پیش کیا. خداوند یسوع مسیح کی نے پہاڑی باز میں 5ویں باب کی 43ویں میں کہا، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت. لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. ایک نیک سامری کی مثال دے کر خداوند یسوع مسیح نے یہ سکھایا ہے کہ ایمانداروں کو مدد کرنے کی ضرورت ہے. اور کس کی؟ صرف اپنوں کی نہیں، ان کی بھی جن کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، ان کی بھی جو ہمارے کچھ نہیں لگتے، ان کی بھی جو جن کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں، جن کو ہم جانتے نہیں ہیں، ان کی بھی مدد کرنا. آج کے دور میں مدد صرف ان کی جاتی ہے جن سے واپس مدد کی توقع ہو. یار ان کا کام کر دیو، کسی ویلے بھی کام آئے گا سارے. اکثر ہم ایسا سوچتے ہیں نا کہ یار ان کا کام کرو، کسی ویلے کام آ جائے گا. تو یار لائی ہوئی رقم روڑی نہیں. اکثر ہم کہتے ہیں وہ لایا روڑیا نہیں، کام آ جائے گا. اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں کہ ہم مدد وہاں پر کرنا چاہتے ہیں جہاں پر توقع واپس ملنے کی. لیکن خداوند یسوع مسیح نے کلیسیا سے کیا توقع کی ہے؟ جا تو بھی ایسا کر نیک سامری کی طرح، کہ نیک سامری سے تو نفرت کرتا ہے، اس نے یہودی کی مدد کی ہے، اسی طرح تو بھی اس کی مدد کر جس سے تو نفرت کرتا ہے. ایمانداروں کو اس طرح سے مدد کی ضرورت ہے. ایمانداروں کو اس طرح سے بھوکوں، ننگوں کو، پیاسوں کو اپنی طرف سے مدد کے لیے پیش کرنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پر یسایہ کی کتاب مدد کرنے اور مدد کرنے والوں کا اجر دونوں کو پیش کرتی ہے کہ جو مدد کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور ان کو اجر کیا ملتا ہے. یسایہ کی کتاب اور اس کا 58واں باب اس کے 7ویں آیت میں لکھا ہے، کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو اوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے. اس میں ہم مذہب نہیں لکھا، ہم جنس یعنی اپنے جیسے انسانوں سے. پھر 8ویں آیت میں لکھا، تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. تیری صداقت تیری ہر اول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا. پھر اس کے بعد دوبارہ سے 10ویں آیت میں پھر دوبارہ سے خدا کہتا ہے، یسایہ کی کتاب اور اس کا 58واں باب 10ویں آیت میں، اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے اور آزرودہ دل کو آسودہ کرے تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا اور تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہو جائے گی. خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا. پس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمے کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو. یعنی خدا برکت دیتا ہے، خدا لوٹا دیتا ہے. جو دیتا ہے خدا اسے اور دے دیتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں اپنے ارد گرد ضرورت مندوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے.
और सिर्फ उसी जरूरतमंद को नहीं जिससे हमें वापस मिल जाए, सिर्फ उसी जरूरतमंद को नहीं कि सिर्फ जो मेरा भाई या बहन है, बल्कि हर उस जरूरतमंद को जो हमारे इर्द गिर्द है, वो मेरा पड़ोसी है, वो हम सबका पड़ोसी है, जो भूखा है, जो ज़रूरतमंद है, जो तकलीफ में है, उसकी मदद करना जिंदा कलीसिया की जिम्मेदारी है। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें इस बात को जहन में रखने की ज़रूरत है कि जिंदा कलीसिया सिर्फ क्लेम नहीं करती कि हम जिंदा कलीसिया हैं, जिंदा कलीसिया साबित करती है अपने कामों से, और उसमें एक खूबी ये है कि जिंदा कलीसिया ज़रूरतमंद की मदद करती है, भूखों को खाना खिलाती है, प्यासों को पानी पिलाती है, नंगों को कपड़ा पहनाती है, मुसाफिरों को घर में उतारती है। जो मुकद्दस के इंजील के 25वें बाब में जिस अदालत का जिक्र है, उसमें इसे एक बड़ी खूबी, एक बड़ी बरकत बताया गया है कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, जब मैं परदेसी था तुमने मुझे घर में उतारा, जब मैं कैद में था तुमने मेरी खबरगिरी की। तो जवाब में है कि रास्तबाज कहेंगे, खुदावंद हमने तेरे साथ कब ऐसा किया? तो खुदावंद यीशु मसीह जो अदालत करने वाला, वो जवाब देगा कि जब तुमने इन छोटों में से किसी के साथ ऐसे किया तो मेरे साथ किया। जब हम ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं तो खुदावंद कहता है मेरे साथ करते हैं, और उसका अजर खुदावंद के पास है। इसलिए मेरे अजीज़ों, अपने आप को ज़रूरतमंदों की, भूखों की, तकलीफ में मुब्तला लोगों की मदद के लिए तैयार करें। कुर्बानी की बात हमारी ज़िंदगी में होती है। खुदावंद यीशु मसीह ने कुर्बानी दी। खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत क्या है? सैक्रिफिशियल लव। उसने कुर्बानी दी, अपनी जान कुर्बान कर दी। इसी तरह हमें भी अपने आप को कुर्बानी के लिए तैयार करने की ज़रूरत है। हम कहते हैं साਡਾ पहले अपना तो पूरा हो ले, फिर दूसरे कराएंगे, लेकिन मसीही ईमान ऐसा नहीं है। मसीही ईमान दूसरे के लिए कुर्बानी देना सिखाता है। ये एक चैलेंज मैं आपको देना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पर इन हालात में जब हमारे इर्द गिर्द लोग भूखे हैं, बेसर समानी की हालत में हैं, छत के बगैर हैं, हम उनकी मदद के लिए अपने आप को तैयार करें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदाबंद, हम इकरार करते हैं कि हम कमज़ोर हैं, तू ही मदद करता है, मजबूत करता है। खुदाबंद, तेरे बेटे यीशु की मोहब्बत हमारे सामने एक मॉडल है। उसने अपने सताने वालों की दुआ की, उसने अपने दुश्मनों, अपने मुखालफों से मोहब्बत की। खुदाबंद, दुआ करते हैं तो अपने फजल से हमें भी ऐसा करने के लिए तैयार कर। खुदाबंद, हम अपनी कोशिश से ऐसा नहीं कर सकते, ना अपनी कोशिश से रास्तबाज कह सकते। खुदाबंद, हम तेरी मदद मांगते हैं, हमारे दिल नरम हो जाए, हमारे सख्त दिल टूटे, ताकि हम खुदावंद ज़रूरतमंदों की मदद के लिए तैयार हो सकें, अपनी बरकतों में दूसरे लोगों को शरीक कर सकें, और एक जिंदा कलीसिया की खूबी बयान कर सकें कि हम एक जिंदा कलीसिया हैं जो मदद करते हैं। खुदावंद, हमें अपने इर्द गिर्द देखने के लिए तैयार कर। हमारे इर्द गिर्द, हमारे ख़ानदानों में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे बहन भाइयों में, हमारी कलीसिया में, हमारे इर्द गिर्द गैर मसीही लोगों में जो ज़रूरतमंद लोग हैं, हमें उनकी मदद के लिए तैयार कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस वक्त हम खुदावंद की तारीफ में गीत नंबर 126 गाएंगे। गीत नंबर 126, गुनाह की सजा जहन्नम, जहन्नम है गुनाहगार तो समझ ले। गीत नंबर 126 126, और इसी के साथ हम अपने हदिये भी खुदावंद की हजूरी में पेश करेंगे। Thank you.
खुदा हम सब मिलकर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हम सब को इस काबिल किया कि हम अपने कदमों पर चलकर तेरी हुजूरी में आ सकें। जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं उनके लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद दुआ करते हैं हमारा तेरी इबादत में शामिल होना हम में से हर एक तेरी बरकत का बायस हो जाए। इन हदियाजात के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं जो तेरी कलीसिया ने तेरी दी हुई बरकत में से तुझे लौटाए हैं। तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे और सारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर बड़ी बरकतें दे, खुशहाली दे। बेरोजगारी यीशु के नाम से जाती रहे, मुआशी मसाइल यीशु के नाम से खत्म हो, तेरे लोग खुशहाली पाएं और तेरी शुक्रगुजारी करने वाले हो सकें। और खुदावंद दुआ करते हैं कि इस हफ्ते में हम सब की हिफाजत कर, हमें बरकत दे, हमारे साथ हो, हमारी रहनुमाई कर, हमारी जिंदगी से यीशु की गवाही। खुदावंद हमारे मुल्क पर रहम कर। हम एक बार फिर अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं, हमारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए, हमारे मुल्क में तरक्की हो, बहाली हो, सैलाब ज़दगान बहाल हो सकें। और खुदा हम दुआ करते हैं हमें से हर एक को ये तौफीक दे कि हमें से हर एक इस जिम्मेदारी को महसूस करे और सैलाब ज़दगान की मदद करने के लिए तैयार हो सके। खुदा हम सब की हिफाजत करें। हमारे जो मसीही तलबा और तालिबात जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए हैं उनके लिए कामयाबी की दुआ करते हैं। जिन्होंने जॉब्स में कामयाबी के लिए जॉब्स हासिल करने के लिए एग्जाम्स दिए हैं उन्हें भी खुदावंद को कामयाबी दे ताकि हमारी कलीसिया तरक्की कर सके। यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज भी बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तो भी हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आज़माइश में पड़ने दे बल्कि हमारी सच्चा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन। अनाउंसमेंट है। महकमा इंसानी हकूक़ व अक़लियती अमूर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से मसीही तलबा और तालिबात के लिए जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कॉलरशिप्स हैं मैट्रिक से लेकर PhD तक, और जिसमें प्रोफेशनल डिग्रीज हैं उनके लिए भी स्कॉलरशिप्स हैं। और इनकी दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 29 सितंबर है, 29 सितंबर आखिरी डेट है। और ये फॉर्म्स आपको वेबसाइट से भी मिल सकते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स है। ये www.hrma ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स .punjab.gov.pk, यानी जब आप गूगल पे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स इन पंजाब लिखेंगे तो ये आपके पास वेबसाइट आएगी जिसमें आप स्कॉलरशिप्स के लिए फॉर्म्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। और ये हम वैसे भी इस फॉर्म को अपने जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, फेसबुक का ग्रुप है, उस पर भी ज़रूर अपलोड करेंगे ताकि आप वहाँ से भी ले सकें। और इसके अलावा ये ईवान इकबाल लाहौर के सामने नेशनल टावर है, वहाँ से भी आपको मिल सकते हैं। नेशनल टावर में ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स का ऑफिस है, वहाँ से भी आपको मिल सकते हैं। तो ये अच्छी रकम है और ज़रूर जो स्टूडेंट्स इस वक्त क्रिश्चियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ये ज़रूर इसके लिए अप्लाई करें, ये आप लोगों के लिए है और इसको ज़रूर हासिल करें इस मौके पर।